Hello, good morning, all of you. How are you? This is SKB, and you are watching Mahindra English Hub. Let's start the video. But before starting the video, I want to tell something. You know what I'm going to tell you? You have not seen the video present continuous tense. Whatever, I have made this video very unique. And today, right now, I'm going to teach present perfect tense. How many structures we have to study in present perfect tense? You can't guess now, but I am telling you 25 unique structures I'm going to teach right now in present perfect tense. You know, it's a herbal, it's a panacea for a spoken English. If you want to speak very fast without the structures of present perfect tense, it is not possible. So my dear, I want to suggest you have to make practice, making practice more and more. After that, you can't imagine how this you can also feel changing even today and tomorrow. That will be yours. Why? You know, if you are laboring hard in the field of English, you are making practice a lot. That's nobody can also harm to you. That's without environment, you can also make practice yourself. And if you are making practice yourself before the mirror, that's every error will be kicked out. Every error will be removed from your heart, mind, and soul. So you have to care. What's right now? Also going to teach about that. Yes, whatever I have made before the video, continually you have to study. Lecture 1, lecture 2, lecture 3, whatever you want to study. Okay, come to the point. Right now I am going to teach you present perfect tense. Okay, how many structures we have to study in present perfect tense? I have already announced here in this classroom. Babu, 25 unique structure I am going to teach right now, and you have to care. With the help of a structure, you have to make a lot of practice, and if you are making practice a lot, after that you can develop in the field of English. Already I have told about that English is not my mother tongue language. That is why problem may be created, and some people that we can also create the fear and bugbear for you. You have to go to England. That is why you are learning English. No, Babu. Why that such children are also going to attend the class in CBSE board? There that will not be changed the rules and regulations. Where mathematics, physics, chemistry, everything that's important there. Only there they are getting environment. So that's I want to suggest you. Please come to the point. You have to study the structure anyhow by hook and by crook. Okay, right now. तो बाबू पहले की भांति मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो प्लीज देखिए ना, क्योंकि सीरियल ढंग से, सीरीज के रूप में सीरियल ढंग से मैंने इस वीडियो को बनाया एकदम 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कोई भी बच्चा होगा और अंग्रेजी पढ़ना चाह रहा होगा तो एकदम बेहतरीन तरीके से वो अंग्रेजी पढ़ सकता है। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जरा सा देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कितने सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे। बाबू बेसिक स्ट्रक्चर सब लोग जानते होंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बाबू अब इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हम डेवलप कर सकते हैं। कैसे डेवलप कर सकते हैं जरा देखिए। सब्जेक्ट है, हैव है, हैज है, फिर उसके बाद नॉट है, फिर उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट लिखे, फिर बाबू यहाँ पे लिख दिए कि हैव है, फिर उसके बाद हैज है, अब फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे है कि हैव है या हैज है, फिर सब्जेक्ट है, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बाबू पहले भी मैंने आपको बताया है कि WH वर्ड्स की सहायता से हम लोग इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, हैव या हैज और प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लिख सकते हैं हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए ट्रांसलेशन कैसे हम लोग डेवलप करेंगे। तो बाबू इजीली हम ट्रांसलेशन को बना सकते हैं, एकदम आसान है। आपने पढ़ा होगा कि वाक्य अंत में या क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, क्योंकि भाई सबसे पहले तो हिंदी मेरे दिमाग में आती है, उसके बाद ही हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए शुरुआती सबके साथ प्रॉब्लम होती है। मैं आपको दावा करता हूँ कि अगर आप टेंस कंप्लीट कर लेते हैं, टेंस का सारा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आगे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेशन को डील कर पाएंगे, ट्रांसलेशन को बना पाएंगे, और हमेशा हिंदी से अंग्रेजी आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये मैंने क्या बताया, जैसे मैंने बोला मैं खा चुका हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखे तो मैं बनाऊंगा क्या भाई, आई हैव ईटन। तो आप वर्ब का तीनों रूप आप जान रहे हैं कि ईट होता है, एट होता है, ईटन होता है, और ये कह रहे हैं कि मैं लिख चुका हूँ। अब यहाँ पे लिख रहे हैं आई हैव रिटन,
ठीक है। और क्या लिख चुका हूँ, तो मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, तो आई हैव रिटन अ लेटर। अब यहाँ पे एक चीज समझाना चाहें, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, हैव आई रिटन अ लेटर, हैव आई नॉट रिटन अ लेटर। और उसके बाद WH फैमिली की सहायता से सेंटेंस को डेवलप करेंगे। पता है क्या करेंगे, फिर बोलेंगे व्हाई हैव आई रिटन अ लेटर, वेयर हैव आई रिटन अ लेटर, when have I written a letter, how have I written a letter, yes I have written a letter। मतलब so many translation you can develop with the help of this structure। Babu, you have to care about that, you have to learn English, that is why that you have to make your practice more and more, whatever that I have been taught in your structure, whatever that I have been also written on your whiteboard। Why Babu? Because that's you are listening carefully and you are noting down in your copy, and after that you will see about that, whenever that you will feel the problem, once again that you will turn over the page of your copy notebook, and after that you will learn, because in one time this will think about that you can memorize, then it is not possible, but I think again and again, I think repeat this you can also do about that, repetition makes your memory perfect। Are you getting? So Babu, please come to the point for subject plus have a has plus B3 plus object, subject plus have a had plus not plus B3 plus object, have a had plus subject plus B3 plus object, have a had subject not plus B3 plus object। WH वर्ड्स में क्या होता है मैंने बताया था पिछले वाला वीडियो में भी बताया कि हु होता है, व्हेन होता है, व्हाट होता है, वेयर होता है, विच होता है, हुज होता है, होम होता है, वाई होता है। और इस तरीके से हम लोग 9 को जो WH फैमिली आते हैं और इसमें बताए अब आई हैव ईटन, आई हैव नॉट ईटन, हैव आई ईटन, हैव आई नॉट ईटन, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, और बेसिक स्ट्रक्चर के बाद बाबू अब हम लोग सीखेंगे आगे का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब देखिए स्पेशल और एडवांस कैसे। देखो बाबू, इसमें हैव हैज रहेगा। अब हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, अब ये चीज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, और कौन सा स्ट्रक्चर हैव हैज की सहायता से किस तरह अर्थ देता है मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा सब्जेक्ट और यहाँ पे लिखा हैव, यहाँ पे मैंने लिखा है। देखो बाबू, टेंस के अनुसार चलोगे तो स्ट्रक्चर भिन्न प्रकार का हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब है कि अर्थ जो भी देता है स्ट्रक्चर वो आपको, क्योंकि स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अरे भाई एक सड़क है, सड़क पर आपको दौड़ना है, अपने सड़क नहीं बनाना है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर पर ही आपको दौड़ना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर पर दौड़ेंगे तभी तो आपकी बातों को अगला समझ पाएगा, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यू विल स्पीक इन इंग्लिश, देन हु विल बी लिसनर, ही लिसन about what just if you are going to talk about that and you are going in a wrong direction, he is not going to complete, he is not going to apply the sense what you are telling, he will understand you are mad। That is why whatever that you have a knowledge that you have started to speak about that, so you have to care something about that। यहाँ पे है subject plus have हैज हो गया, अब प्लस में हमने लगा दिया become, ठीक है। अब प्लस नाउन या एडजेक्टिव। अब हम यहाँ पे देखिए एन से नाउन, एस एडजेक्टिव मैंने आपको बताया। तो बाबू मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट हो गया, हैव हैज हो गया, बिकम हो गया, नाउन या एडजेक्टिव हो गया। तो इसमें क्या बताया कि ही हैज बिकम ए डॉक्टर, यानी वह एक डॉक्टर बन चुका है। क्या बाबू? वह एक डॉक्टर बन चुका है। बाबू कॉपी कलम ले करके नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। वह एक डॉक्टर बन चुका है। अब नेगेटिव, मैं एक सरकारी शिक्षक बन चुका हूँ, आई हैव बिकम ए गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। कह रहे हैं कि वह एक डॉक्टर नहीं बन चुका है, तो ही हैज नॉट बिकम अ डॉक्टर। और आप बाबू हैज हैव तो जानते ही होंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बाकी जितने भी मिलते हैं उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। दे रहेगा तो हैव, आई रहेगा तो हैव, ठीक है, यू रहेगा तो हैव, वी रहेगा तो हैव, लेकिन ही सीट नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डेवलप कर सकते हैं। और आगे चलते हैं बाबू, तो ये जो है जरा देखिएगा, सब्जेक्ट है, हैव या हैज है, ठीक है। और अब देखिए इस पर हम बहुत तरह के ट्रांसलेशन जोड़ने की, ठीक है ना, कोशिश करेंगे। कह रहे हैं आपने, यू हैव, यहाँ पे लिख दिए कि ट्राइड, TRIED, ट्राइड प्लस 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हुआ बाबू? आपने खेलने का बहुत बढ़िया प्रयास किया है या कर चुके हैं। यू हैव ट्राइड टू प्ले वेरी वेल, ठीक है बाबू। आपने खेलने का बहुत बढ़िया प्रयास किया है, तो यू हैव ट्राइड टू प्ले वेरी वेल। अब मान लीजिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको डेवलप करना है, आप बोल सकते हैं यू हैव नॉट ट्राइड टू प्ले वेल, या हैव यू ट्राइड टू प्ले वेल, हैव यू नॉट ट्राइड टू प्ले वेल। फिर WH फैमिली की सहायता से व्हाई हैव यू ट्राइड टू प्ले वेल, वेयर हैव यू ट्राइड टू प्ले वेल, इस तरीके से ट्रांसलेशन को डेवलप करेंगे। तो मैं समझता हूँ सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बिकम नाउन या एडजेक्टिव भी समझ रहे होंगे, और यहाँ पे ये भी समझ रहे होंगे सब्जेक्ट प्लस हैव हैज ट्राइड टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद जब हम लोग चलते हैं बाबू, इसको नोट डाउन करते चलिएगा, और इसके बाद हम लोग आते हैं तो कम टू द पॉइंट। क्या देखिए तीसरा,
अब हमने कहा कि सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, अब हैव हो गया, फिर उसके बाद हैज, फिर उसके बाद ट्राइड, फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद बी या बीकम प्लस नाउन या एडजेक्टिव। क्या हुआ भाई, आपने यू हैव ट्राइड टू बीकम अ गुड पर्सन। आपने एक अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास किया है, आपने एक अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास किया है, ठीक है ना बाबू। तो ये जो है सब्जेक्ट हैव या हैज ट्राइड टू बी या बीकम प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो बाबू नाउन या एडजेक्टिव कुछ भी करें ना कि आप बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश किए हैं तो यू हैव ट्राइड टू बी स्मार्ट, आप बहुत ज़्यादा काबिल बनने की कोशिश किए हैं तो यू हैव ट्राइड टू बी ओवर स्मार्ट, आप कंजूस बनने की कोशिश किए हैं तो यू हैव ट्राइड टू बी माइजर, और ज़्यादा कंजूस बनने की कोशिश किए हैं तो यू हैव ट्राइड टू बी ओवर माइजर। अगला चलेंगे बाबू, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद ठीक है ना लाइट लिख देंगे, फिर टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, उसने अच्छा काम करना पसंद किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ही हैज लाइक्ड टू डू अ गुड वर्क, ठीक है, उसने एक अच्छा काम करना पसंद किया है, ठीक है। अगर बी या बीकम पर ले जाएंगे बाबू तो सब्जेक्ट प्लस हैव लगाएंगे, फिर हैज, लाइक यहाँ पे दे देंगे और टू लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, बी या बीकम, और फिर उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। क्या करेंगे कि आपने पायलट बनना पसंद किया है, तो इसमें हो जाएगा क्या, आपने पायलट बनना पसंद किया है, यू हैव लाइक्ड टू बी अ पायलट, आपने एक पायलट बनना पसंद किया है। अब देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव कोई भी सेंटेंस का अगर हम चाहे बना सकते हैं, ही हैज लाइक टू डू अ गुड वर्क, he has not like to do a good work, has he like to do a good work, has he not like to do a good work। इसमें करेंगे you have like to be a pilot, you have not like to be a pilot, have you like to be a pilot, have you not like to be a pilot। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना, अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तब जुबान पर बैठेगा और आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। अब बाबू आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। अब इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। अब इसके बाद बोलने में जितने प्रकार के स्ट्रक्चर की जरूरत हमें होगी मैं सब सिखाने की कोशिश करूंगा, और ये तो अभी बेस है, आगे देखिए क्या क्या होता है। ये सब्जेक्ट है हैव या हैज है, ठीक है, और उसके बाद बिगन का प्रयोग करते हैं, BEGUN, बिगन प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, लगा लगी के सेंस में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा आप अब अंग्रेजी बोलने लगे हैं, आप अब अंग्रेजी बोलने लगे हैं, यू हैव, नाउन लगा दीजिए आगे पीछे के, यू हैव बिगन टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, यू हैव बिगन टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलने लगे हैं, तो अब आप अंग्रेजी बोलने लगे हैं तो नाउ यू हैव बिगन टू स्पीक इंग्लिश। अब इस पर बहुत सारा ट्रांसलेशन को हम चाहे तो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। आप सोशल वर्क करने लगे हैं, अगर हम बोले, ठीक है ना, आप पत्र भेजने लगे हैं, बोले आप पढ़ाई करने लगे हैं, आप तरह तरह के ट्रांसलेशन को डेवलप कीजिएगा, ठीक है। अगर बाबू इसके बाद चलते हैं तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट लिखे, हैव लिखे, हैज लिखे, फिर बिगन लिखे, और आप जान रहे हैं कि टू लिखे, बी या बीकम लिख देंगे, और बी या बीकम प्लस नाउन या क्या जोड़ देंगे, एडजेक्टिव। अब ये कह रहे हैं, ठीक है ना, कि आप बहुत ज्यादा काबिल बनने लगे हैं तो यहाँ लिखेंगे यू हैव बिगन, ठीक है, टू बी ओवर स्मार्ट,
मतलब आप बहुत ज्यादा काबिल बनने लगे। क्या बाबू? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीगन प्लस टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, और इस पर यू हैव बिगन टू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोलने लगे, हिंदी बोलने लगे, आप किसी को गाली देने लगे। हम बहुत तरह का ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बिगन टू बी या बिकम प्लस नाउन एडजेक्टिव, यू हैव बिगन टू बी ओवर स्मार्ट। अगर यहाँ पे माइजर जोड़ देते हैं बाबू तो हो जाएगा ज्यादा कंजूस बनने लगे। अगर कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट जोड़ देते तो यहाँ पे हो जाएगा कि ज्यादा तेज बनने लगे। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन को डेवलप करेंगे। अब बाबू इसके बाद जब चलते हैं तो यहाँ पे होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। ठीक है, और लिखेंगे क्या भाई? तो केवल ऑब्जेक्ट। ऐसे देखिए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि बाबू हैव हैज का कहाँ पे प्रयोग किया जाता है और उसके सहायता से कैसे ट्रांसलेशन को डेवलप करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज और उसके बाद लिख दिया ऑब्जेक्ट, तो देखिए आई हैव अ, ठीक है ना, BMW कार। अगर हम कह रहे हैं BMW कार, मेरे पास एक BMW कार है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं और मैं एक BMW कार रखता हूँ। इसका दो तरह का हिंदी होता है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में आप जाते हैं तो वहां पे पहचान देता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में या है, ये है, ये है। लेकिन मेरे भाई मैं वो चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ जो टाइम एंड टेंस में है, मैं वो चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो स्ट्रक्चर के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, अभी मत सोचिएगा कि मेरे पास से कार है, इसमें चुका है, चुकी नहीं है तो कैसे हो गया। नहीं, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, क्योंकि कोई भी ट्रांसलेशन अब बनेगा कि मेरे पास पैसे हैं तो आई हैव मनी, तो कैसे बनेगा आई हैव मनी? क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर की जरूरत वहां पे है। चूंकि ग्रामर का कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम लोग स्ट्रक्चर के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजी कैसे बोलेंगे। तो इसमें हिंदी दो प्रकार से लिख सकते हैं, मेरे पास एक BMW कार है, ये भी कर सकते हैं, और मैं एक BMW, ठीक है, कार रखता हूं। बाबू स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा है, आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे के स्ट्रक्चर में जब हम लोग चलते हैं, बहुत सारा स्ट्रक्चर है बाबू। एक ही कहते हैं ना टेंस की 12 गो टेंस आपको मिलता है ना, मैं आपको 120 स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ और देखिएगा 120 स्ट्रक्चर की सहायता से कैसे आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एकदम बोलेंगे, ज्यादा हवा पानी देने की जरूरत नहीं है बाबू, ये वो जहां तहां से नहीं, एकदम रेगुलर पढ़ाई कीजिए। देखिए कैसे सीखते हैं। अब ये सब्जेक्ट लिखे है, हैव लिखे, हैज लिखे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टू लिख सकते हैं प्लस B1 लिख सकते हैं, और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी एक वर्ड है उस ट्रांसलेशन के अनुसार जिस तरीके से यूज होगा, जैसे प्रीपोजिशन होगा तो यहाँ पे प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ एक, और कहें मेरे पास कलम है लिखने के लिए। अगर मान लीजिए इस तरीके से, मेरे पास एक कलम है, कलम है क्या चीज के लिए? लिखने के लिए। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आई हैव अ पेन, यहाँ पे तो हम लोग लिख लिए, लेकिन आई हैव अ पेन टू राइट। अब खाली राइट लिखेगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे राइट विद लगाना होगा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर उसकी जरूरत नहीं है, अगर वहां पे प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट है, ठीक है, कि मेरे पास एक गाड़ी है चलाने के लिए, तो प्रॉब्लम नहीं है, कह दिए कि आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार टू ड्राइव। अब बाबू अगर आप चाहते हो कि नहीं इसको दूसरे तरीके से बनाएं, तो देखिए टू अपने साथ B1 लेता है, लेकिन 4 अपने साथ B4 लेता है। तो अगर आप चाहें यहाँ पे टू ड्राइव की जगह आई हैव अ कार फॉर ड्राइविंग, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि दो तरह का, एक फॉर्मल के रूप में बनाते हैं और दूसरा इनफॉर्मल के रूप में। तो बाबू जो ग्रामर के कंसेप्ट को जो ग्रामर के कंसेप्ट को फॉलो करता है वो फॉर्मल स्टाइल में चला जाता है, और जो इसी तरह से कंसेप्ट को फॉलो करता है, मान लीजिए बोलचाल में या कहीं लिखने उखने में या कोई कहीं पे उसको यूज करता है, तो इनफॉर्मल। तो कभी कभी इस तरीके, लेकिन ये तो है कि हमेशा प्रीपोजिशन टू जो है B1 लेता है, लेकिन 4 B4 लेता है। ठीक है ना, तो ये ट्रांसलेशन आपका सही है। अब उसके बाद अगर हम चलते हैं इस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस और यहाँ पे दे दिए कि हैव है, फिर उसके बाद हैज है, ठीक है ना, और देखिए द हैबिट ऑफ, अब प्लस दे दिए B4 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं इसी ट्रांसलेशन को लिख रहा हूँ। देखिएगा अर्थ वही देगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस इन द लिखे और इन द हैबिट और उसके बाद ऑफ प्लस B4। ठीक ना बाबू, देखिए ये जो है ना दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। अब आपको थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, नहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं आपके सामने जो स्ट्रक्चर लिखा हूँ बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है ना, कहे मुझे अंग्रेजी पढ़ाने की आदत है, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है। अगर मान लीजिए इस तरीके से बोल रहे हैं, मुझे अंग्रेजी, ठीक है, बोलने
की आदत है, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है। तो बाबू यहाँ पे कहें कि आई हैव, ठीक है ना, आई हैव द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है ना बाबू। देख लीजिए क्या मैंने बोला, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, आई हैव द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। या बोल सकते हो कि आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ पे हैव नहीं करेंगे, आई एम इन कर देंगे, आई है इसलिए एम लगाएंगे, ठीक है, और आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो बाबू फिर से मैंने क्या बताया कि मैं बोला मेरे पास एक कलम है लिखने के लिए, तो मैंने बताया कि आई हैव ए पेन टू राइट विद। अगर मैं बोला कि मेरे पास एक कार है चलाने के लिए, तो आई हैव ए कार टू ड्राइव। मैंने बोला कि मेरे पास कार है चलाने के लिए, तो कह रहे हैं आई हैव ए कार फॉर ड्राइविंग। अब लिख रहे हैं यहाँ पे क्या भाई, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, तो दो स्ट्रक्चर बताया कि सब्जेक्ट प्लस है और द हैबिट ऑफ प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, या सब्जेक्ट प्लस है जा रही इन द हैबिट ऑफ प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना बाबू। अब इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आई थिंक हमको लग रहा होगा कि आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे, ठीक है ना बाबू। अब देखिए आगे के स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको फॉलो करना होगा, तब भी जाके आप सीख पाइएगा और अच्छा स्पीकर बन पाइएगा बाबू, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यही आपका बैकबोन है। अब कहें कि सब्जेक्ट है हैव है, हैज है। देखो बाबू हैव और हैज यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए 4 वर्ड लिख रहे हैं, ए लैक ऑफ, ठीक है, ए लैक ऑफ, फिर मैंने लिखा ए लॉट ऑफ, और फिर मैंने लिखा मोर देन। देखिए बाबू जरा देख लीजिए, आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। ये लिखा क्या, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ए लैक ऑफ, ए लॉट ऑफ, मोर देन, और फिर उसके बाद मैंने लिखा एट लिस्ट। देखिए सबसे पहले और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा लिख देंगे। देखो भाई ध्यान रखिएगा, ये लैक ऑफ का मतलब होता है कमी, ठीक है, और अगर मान लीजिए लॉट ऑफ है तो होता है ज्यादा या अधिक, ज्यादा या अधिक, इसका हिंदी आप लिख लेंगे, ठीक है ना। और मोर देन मीन्स होता है से अधिक, ठीक है, और ये एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम, ठीक है। अब देखिए 4, ये है बाबू, एक तो लिख रहे हैं लेकिन इस पर 4 स्ट्रक्चर आपका बनेगा। जैसे मैंने बोला क्या, उससे या उसके पास ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है, उसके पास ज्ञान की कमी है। तो बाबू कुछ नहीं, मैंने लिखा ही, फिर लिखा हैज, और ए लैक ऑफ का प्रयोग मैंने किया। ए लैक ऑफ और ज्ञान का होता है बाबू नॉलेज, तो मैंने बोला ज्ञान की कमी। अब पैसे की कमी है या और भी चीज, उसके पास व्यवहार की कमी, मैंने जो आपको यूज करना होगा, कई तरह से आप ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। देखिए मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत धन है, ठीक है, मनी मीन्स धन भी होता है बाबू। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मतलब हुआ मेरे पास बहुत है, क्या मेरे पास बहुत नॉलेज है, तो आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज। इस तरीके से ट्रांसलेशन को। और तीसरा जो देख रहे हैं ना कि मोर देन है, आई हैव मोर देन 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स, ठीक है, मेरे पास 1 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। आई हैव मोर देन 1 करोड़ सब्सक्राइबर, मेरे पास 1 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। अब देखिए क्या है बाबू, यहाँ पे लिखे आई हैव मोर देन 1 करोड़ सब्सक्राइबर, यानी मेरे पास 1 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर है, और एक है एटलीस्ट, कम से कम। अब लिखेंगे आई हैव एटलीस्ट 5000 स्टूडेंट्स। कम से कम मेरे पास, लिखना चाहे लिखिए, कम से कम मेरे पास 5000 स्टूडेंट हैं, 5000 विद्यार्थी। तो आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ए लैक ऑफ या लॉट ऑफ या मोर देन या एटलीस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद भी आप समझ गए होंगे कि ये चारों का कैसे यूज करेंगे।
क्या बताया बाबू कि सब्जेक्ट प्लस है एज प्लस ए लैक ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस है एज प्लस ए लॉट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस है प्लस मोर देन प्लस, और सब्जेक्ट प्लस है एज प्लस एटलीस्ट प्लस ऑब्जेक्ट। चारों से एक एक मैंने एग्जांपल दे दिया। अब तरह तरह के आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। कम से कम उसके पास 10 गाड़ियां हैं, कम से कम उसके पास 5 कलमें हैं, कम से कम उसके पास 5 गाय हैं, जैसे भी बनाना चाहें, ठीक है ना, आप बना सकते हैं ट्रांसलेशन को, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना, अगला स्ट्रक्चर की तरफ, या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। और हमेशा सजेस्ट करते रहेंगे बाबू कि अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप देख लीजिए, ठीक है। और अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। क्यों बाबू? और हमेशा हर वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके साथ कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके समस्या का समाधान निकले, ठीक है ना। चलते हैं आगे के स्ट्रक्चर में। तो सब्जेक्ट है बाबू, हैव है, हैज है, और उसके बाद टू है, V1 है प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बाबू, कहा जाता है एक बाम चार काम। देखिए हिंदी में लिख रहा हूं, मुझे पढ़ना पड़ता है, एक, मुझे पढ़ना पड़ा है, दो, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, एक, मुझे पढ़ना पड़ता है। देखिए एक स्ट्रक्चर बाबू, सब्जेक्ट प्लस है प्लस टू प्लस V1 प्लस, तो एक बाम चार काम। देखिए मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ा है, मुझे पढ़ना है, अब मुझे पढ़ना होता है, मुझे पढ़ना होता है। अब देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग बनाएंगे। तो अब देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर मिलता है तो ट्रांसलेशन को इजीली डेवलप करेंगे। क्या? तो एक ही देखिए, आई हैव टू रीड, हो गया। मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ा है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना होता है, आई हैव टू रीड। अब देख लीजिए कि एक बाम चार काम है कि नहीं। स्ट्रक्चर तो एक है लेकिन मेरे भाई इसमें 4 तरह के हिंदी देता है, और जब भी इस तरीके का हिंदी आपके साथ है तो आप इस ट्रांसलेशन का यूज करें। अब जस्ट इसके आगे हम लोग चलते हैं तो लिखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस है, अब फिर लिखेंगे टू, अब बी या बीकम, ठीक है, अब प्लस नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। अब क्या कहा, मुझे पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार से अब यहाँ पे मुझे एक डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना पड़ता है, ठीक है, मुझे एक डॉक्टर बनना होता है, और मुझे एक डॉक्टर बनना पड़ा है। बाबू 4 तरह के हिंदी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हम आपके सामने लिखे हैं, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना पड़ता है, मुझे एक डॉक्टर बनना होता है, मुझे एक डॉक्टर बनना पड़ा है। तो ये सारे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, लेकिन अब ये सारे सेंटेंस को देखने के बाद आपको केवल एक ही बनाना है। क्या? तो आई हैव टू बी ए डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना पड़ता है, मुझे एक डॉक्टर बनना होता है, मुझे एक डॉक्टर बनना पड़ा है। तो हम समझते हैं कि ये जो है बाबू कम से कम 8 स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। मैंने बताया बाबू कि आप वीडियो को लगातार देखते रहिए और बने रहिए इस चैनल पर। कौन सा चैनल? बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, महिंद्रा इंग्लिश हब। और इस चैनल पर मैं हमेशा आपको वीडियो अपलोड करते रहूँगा, वो भी एकदम सीरीज में, एकदम क्रम से, सिस्टमेटिक प्रोसेस से, ताकि आपको कोई भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो, किसी भी लेसन को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। और ये जो भी स्पोकन का वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। और बाबू हमेशा वीडियो को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करना ना भूलिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ कुछ अजूबा यूनिक स्ट्रक्चर्स के साथ जो आप बहुत इंजॉय करेंगे। जय हिंद, जय भारत।